Audio Jungle. Is it visible my screen? Yes, sir. Yeah. So, are everybody done? Even if there is mistake, don't worry. We'll try in different way this program, and you will understand how to program actually. Okay, how to use the syntax, right? How to use the power of C one by one. Okay, let's see. Yeah. So, what we've done here, table equal to 2. Are you able to see my screen, blue screen? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So let's run this program once again before we start answering, doing the stuff. How many of you are doing still? Okay. So let's start. I've seen a few chats. I cannot see chat from here. I have to go there. Okay. So there has written table equal to 2, D, table. Okay. So let me, oh, but I cannot copy this here. There. Uh, I have to type that stuff. Insert. Then I'm using this code. No, it's not getting copied actually. Okay, what I will do, I will go to online C here, and here I think it will get pasted. Sorry. Copy and okay, here it's working. So let me check here. No, it's not coming up. Okay. So okay. Are you able to see my online GDB? Yes, sir. Okay, good. Yes, So sir. Yes. yeah, thanks. So I copied this code and I'm trying to run this. Okay. Visual Studio. Did you run this program? Oh, Amin said yes. Good. Yeah. Now let's see what is an outcome. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. So just those who not done anyway, any technique, for you this will be first. You just check here. I'll explain the logic. Okay. We'll start one by one. Table is a declared. It is initialized to 2, and that value is printed %d table, right? So here what happened?
here what happened, yeah. So here what happened, this value of table goes to this place. You understand? This value of table will go to this place. This is how printf works, right? You understand? Now table is declared here as a variable, table. When it declared, what it does, it creates memory block. Yeah. It creates a memory block of whose name is table, okay, who has address of, who has given an address of, say, sample address is 1, that is pin code in our term, right? And the value that we stored is 2. You understand till this time, right? एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया इंट का, उस लोकेशन को नाम मिला टेबल, ह्यूमन रीडेबल नेम, machine readable name is 100, value stored in both of them is same, that is 2 initially. First printf, value from table, value of table means what, 2 or 100, value of table, value stored at table 2, sorry, value stored at variable called table is how much, 2, right there, yes. So that value will be printed because this value is integer type. So we use format specifier as just a minute. Yeah. So so this variable will get printed using the format specifier as %d, and there is a combination of format specifier as well as escape sequence, right? Due to this /n, the next value that will be printed on the next line, beginning on the next line. Okay, something like oh, fine, let it be. See, these 14, 16 are coming on the next line, right? That way. So what he done, table equal to table plus 2. इसका मतलब क्या है कि मैं वही वेरिएबल को कितने बार यूज कर सकता हूं, एक वेरिएबल को, हमने देखा ये, यू हैव सीन दिस कंसेप्ट, राइट? एक वेरिएबल कितने बार यूज कर सकता हूं, x equal to 3 and then x equal to 5. Did you remember that? Yes, very nice. There's Amir and yeah, all you given answer. Thanks. So एक वेरिएबल हम लोग कितने बार भी यूज कर सकते हैं, जितने बार हम लोग को चाहिए, जब तक वो यूजेबल है तब तक हम लोग कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे हमको 10 बार करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? एक वेरिएबल कितने बार डिक्लेयर कर सकते हैं हम लोग, इन्फिनिट और वन टाइम, राइट? सो एक ये यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया, दिस इज वंस, यहाँ पे मल्टीपल टाइम हमने यूज किया उसको, राइट? यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स हमने
यहां तक यूज किया उसको 20 बार, एक बार इनिशियलाइज करने के लिए, वैल्यू डालने के लिए, और एक बार वो जो वैल्यू डाला है उसको प्रिंट करने के लिए। तो अभी लाइन नंबर 14 यहां पे क्या हुआ, 2 मैंने स्टोर किया तो ये ब्लॉक बना, ये राइट वाला दिख रहा है क्या आपको, राइट। प्रिंटफ किया तो टेबल का वैल्यू जो भी रहेगा वो प्रिंट किया, राइट, तो 2 प्रिंट हुआ। अब लाइन नंबर 16 पे आया मैं, यहां पे क्या हुआ, टेबल इक्वल टू टेबल प्लस 2। तो टेबल इक्वल टू टेबल प्लस 2 कैसा होता है ये, मतलब तुम्हारा जो 2 + 3 = 5, हम लोग जो जनरल लिखते हैं ऐसा कंप्यूटर में उल्टा लिखते हैं। मैं बताता हूं मैं क्या बोलना चाहता हूं। हम लोग जनरल कैसा लिखते हैं, जनरल मैथमेटिक्स 2 + 3 = 5 ऐसा लिखते हैं ना, दिस इज जनरल मेथड, जनरल मैथ एक्सप्रेशन। या तो कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर में ऐसा होता है 5 = 2 + 3, दिस इज हाउ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन बिहेव। आंसर कहां पे होता है प्रोग्रामिंग में, लेफ्ट में रहता है, लेफ्ट वाले साइड में, राइट। एक्सप्रेशन जो प्रोसेसिंग है वो राइट साइड में होती है इक्वल के, वेरस जनरल में आंसर राइट साइड में होता है, प्रोसेसिंग लेफ्ट में होती है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, बहुत छोटी चीज बता रहा हूँ बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दोज फॉर दोज हु डोंट नो एनीथिंग अबाउट प्रोग्राम। सो इस तरह से यहाँ पे धैर्य ने जो लिखा है टेबल इक्वल टू टेबल प्लस 2, तो टेबल में ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद में लाइन नंबर 16, जब हम लोग लाइन नंबर 17 पे पहुंचेंगे तो टेबल में वैल्यू क्या रहेगी, यहां पे वैल्यू क्या थी, यहां पे वैल्यू क्या थी इसके अंदर फर्स्ट टाइम डिक्लेयर जब किया तब, कोई बता सकता है? जब डिक्लेयर किया लाइन नंबर 13 पे, 2, लाइन नंबर 13 पे कौन सी वैल्यू रहेगी, 2, लाइन नंबर 13, no value, नो वैल्यू, एनी वैल्यू, राइट। वो 2 रहेगी, 2000 रहेगा, 2 लाख रहेगा, कुछ भी हो सकता है, कचरा, दैट इज कॉल्ड इन कंप्यूटर टर्म्स गार्बेज, राइट। बट we don't work with we don't we want to play or we want to work with definite number that we wanted to, right। तो वो हमको जो पहला नंबर चाहिए वो है 2, तो हमने क्या किया, टेबल में 2 डाला, लाइन नंबर 14। तो ये डायग्राम बन गया आपका। तो ये डायग्राम बनने के बाद हमने उसको प्रिंट किया, 2 प्रिंट हुआ। अब लाइन नंबर 16 पे आए, वहां पे एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट मारा है हमने, क्या किया हमने, टेबल इक्वल टू टेबल प्लस 2। तो टेबल इक्वल टू टेबल प्लस 2 मतलब क्या हुआ, पहले टेबल में कितना वैल्यू था, 2 था, 2, 2 प्लस टेबल का 2 वैल्यू रिप्लेस हुआ टेबल के जगह पर, इक्वेशन बना समथिंग इक्वल टू टेबल प्लस 2 + 2। तो 2 + 2 का आंसर कितना आया, 4, 4। तो 4 गया, ओ सर ठीक है, वो वापस लिखना पड़ेगा मेरे को। तो आपको समझ में आया क्या, वहां पे 4 आएगा, सॉरी टेबल यहां पे आया 4, हाँ ठीक है। अब 4 आने के बाद में उसको printf %d/n टेबल से, सॉरी लाइन नंबर 17, लाइन नंबर 17 और 15 में कोई डिफरेंस है क्या, लाइन नंबर 15 और 17 में कोई डिफरेंस है क्या, नो, यस,
Family, you are right. So there is no difference, right? Because we want to print number which is stored in table, right? तो टेबल में अभी कितना वैल्यू है? अभी टेबल में कितना वैल्यू है? When it executed लाइन नंबर जब वो 17 पे जाता है तो टेबल में क्या वैल्यू होता है? 4 4. तो उसने प्रिंट किया 4. आगे जाते हैं लाइन नंबर 18 पे. 18 पे वापस क्या लिखा है आपने? plus 2 टेबल इक्वल टू 4 प्लस 2. तो यहाँ पे क्या होगा? 6 6. फिर प्रिंट किया उसको 6. ऐसा करते करते हमने जितने बार बोला उतने बार उसने किया. फाइनली उसने 20 प्रिंट किया और काम खत्म. इसमें कोई डाउट है? no गुड. अभी हम लोग इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज करना है. ऑप्टिमाइज करना इज नेवर एंडिंग टास्क फॉर एनी प्रोग्रामर. कोई प्रोग्रामर बोल नहीं सकता कि मेरा प्रोग्राम इसके आगे कभी ऑप्टिमाइज नहीं हो सकता. देयर इज ऑलवेज स्कोप. समझ में आ रहा है क्या? मैंने प्रोग्राम किया मतलब बहुत फाइनल हो गया, ऐसा कंसेप्ट आपके दिमाग में रखना मत. यू आर नॉट सुपीरियर प्रोग्रामर. हम जो प्रोग्राम करते हैं उसके अंदर ऑप्टिमाइज मतलब क्या? उसमें इंप्रूवमेंट के चांसेस हमेशा होते हैं. एंड यू शुड बी वेरी ओपन टू अडॉप्ट सजेशन फ्रॉम एनीबडी एल्स और यूर सेल्फ. आप खुद भी सजेशन दे सकते हो खुद को. नहीं यार मेरे को ये करना चाहिए था. मैंने यहाँ पे क्या किया है? टेबल इक्वल टू 2, टेबल इक्वल टू टेबल प्लस 2, टेबल इक्वल टू टेबल प्लस 2. ये मैंने मतलब लाइन नंबर 16 17 रिपीट हुआ है. लाइन नंबर 18 19 पे, 20 21 पे, 22 23 पे, 24 25 पे. ये मैं अभी ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहा हूं. आप समझ लेना ये बात को क्या कर रहा हूं मैं. राइट? आपको समझ में आ रहा है क्या? सेम लाइन लिखा है, राइट? जब तक उसका टारगेट अचीव नहीं हुआ तब तक, राइट? तो इसको हमको ऑप्टिमाइज करना है. बट अभी उसके पहले हम लोग क्या करते हैं? इस प्रोग्राम को कन्वर्ट करते हैं 3 के टेबल में थोड़ी देर के लिए. कैसे करेंगे? एक लाइन लिखना है. देखो क्या होगा. ओह ये तो नहीं चला यार. ये तो 3 का टेबल नहीं दिया मेरे को, दूसरा ही कुछ दे दिया इसने. तो ये टेबल वाला प्रोग्राम नहीं है ये. इसका मतलब क्या करना पड़ेगा हमको? ये बता सकता है? मेरे को लग रहा था मैं टेबल का प्रोग्राम बनाऊंगा. +3 करना है मतलब यहां पे मेरे को +3 करना पड़ेगा, राइट? रिप्लेस ऑल 2 बाय 3. यस दैट्स परफेक्ट आंसर. तो अब हम लोग क्या करते हैं? रिप्लेस 2 बाय 3 बिकॉज मेनी पीपल हैव गिवन दिस आंसर, सो आई एम डूइंग दैट रिस्पेक्टिंग देयर थॉट प्रोसेस. मैं कर रहा हूं. 10 चेंज करने पड़ेंगे. करता हूं 2 मिनट. आप कर रहे हो तो आप भी करो. ध्येय का प्रोग्राम आप कॉपी कर लो सो दैट यू कैन डू अलोंग विथ मी. चैट में है ध्येय का प्रोग्राम. राइट. इसको रन करते हैं क्विकली क्योंकि मेरे को फिनिश करना ही है. ओह दैट्स नाइस. अभी क्या करना है? ये देखो प्रोग्राम सही आया अपना. 3 का प्रोग्राम. अभी इसको 4 का करना है. अब क्या करूं मैं? बोलो. table is equal to table plus 4 अभी मैं नहीं करूंगा. +4. आई वांट टू ऑप्टिमाइज इट. सेम काम नहीं करूंगा मैं. मेरा प्रोग्राम एफिशिएंट नहीं है. रिप्लेस ऑल 3 बाय 4. श्यामली आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट. एक बार किया मैंने आपको समझाने के लिए. अभी नहीं करूंगा. अभी मेरे को परफेक्ट सॉल्यूशन चाहिए जिससे कि यहां पे मैं जो भी वैल्यू डालू बट वो सब चलना चाहिए. वो टेबल देना चाहिए उसने. आई एम नॉट गोइंग टू रिप्लेस ऑन 10 टाइम्स. यूजिंग फॉर लूप. नो फॉर लूप मैंने सिखाया ही नहीं अभी तक.
और फॉर लूप भी करेंगे तो वो एक ही बात होगी। टेबल +2 हटाकर somebody is saying something. Let me go there on the chat. सलीम क्या बोल रहा है? टेबल +2 को हटाकर टेबल को मल्टीपल करना है। किससे करना है मल्टीपल? टेबल इक्वल टू n टेबल इक्वल टू टेबल प्लस n। नो, देयर यू आर रॉन्ग। ऋतिक मल्टीप्लिकेशन बोल रहा है। क्या मल्टीप्लाई करूं ऋतिक? चेंज वैल्यू ऑफ n टेबल इक्वल टू n। साइराज टेबल +3 + 1 नहीं रे, दैट इज सेम ना। टेबल +4 करना क्या और टेबल +3 + 1 करना क्या, एक ही बात है ना। ठीक है, यहाँ पर टाइम कम लगना है सर। कहाँ से टाइम कम लगेगा? उल्टा डबल टाइप करना पड़ेगा मेरे को, प्लस भी टाइप करना पड़ेगा और उसके आगे 1 हमेशा करना पड़ेगा। 20 टाइम्स 20 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इतने चेंजेस करने पड़ेंगे मेरे को। आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। अभी इसको क्या करना है अपने को? इसको हमें टेबल मतलब क्या होता है? 2 1 जा 2 होता है, राइट? तो 2 2 जा ये हो गया। इस प्लस को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। मेरे को ऐसा सर 4 डबल हाँ 4 डबल हुआ। कहाँ पे? अच्छा ये 2 3 4 5 थैंक्स 6 सॉरी 6। आपके कंप्यूटर पे आप कीजिए फटाफट। टेबल 8 और इसको 9 इसको अभी रन करते हैं। या दीपाली ग्रेट। हो क्या हुआ ये? क्लियर किया है ना सर, टेबल इज इक्वल टू 4। ये 4 का टेबल है ना? क्या हुआ क्या इसको? इस सभी को 2 से करना चाहिए था। हाँ मतलब मेरा भी कंपाइलर थोड़ा सा गड़बड़ है। सर वो पहले वाले टेबल में 2 से मल्टीप्लाई हो जा रहा है ना, इसलिए पावर्स में बढ़ता जा रहा है वो। यस बट ठीक है। अरे ये क्या हो गया यार, पूरा चला गया। कंट्रोल Z सर। थैंक यू यार। हाँ ओके, तो अब इसको रन करते हैं। अरे क्या हुआ? सर पहले आपने टेबल का वैल्यू 4 लिया। सर सॉल्व 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डालना है मल्टीप्लिकेशन में। एक मिनट, क्या हुआ देखो। अच्छा डबल हो रहा है वो। और टेबल की वैल्यू रेप्लिकेट करने के लिए उसको वापस से टेबल में स्टोर करने की जरूरत नहीं है। वी कैन डायरेक्टली यूज सम अदर वेरिएबल और डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसे। हाँ तो ये प्रोग्राम एक बार के लिए ठीक है, बट हर समय मेरे को अगर रन करना है बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ टेबल, ये मेरे को नई आउटपुट देगा, राइट? ये क्या कर रहा है? पहली बार जब मैंने रन किया तो उसने पहला 4 दे दिया सही,
उसको क्या किया उसने, सेकंड टाइम 4 का 8 कर दिया, ना कि 6 किया। नहीं, 4 का 8 सही किया। 4 3 जा 12, राइट? यहाँ पे 12 चाहिए मेरे को, राइट? राइट, बराबर है ना? ये क्या करना है मेरे को यहाँ पे? तो यहाँ पे मैं आप जैसा बोल रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मध्ये 1 2 3 4 5 सर इट्स लाइक हम सेम वेरिएबल टेबल में आउटपुट्स को स्टोर नहीं कर सकते अगर हमें टेबल वेरिएबल को ही बार बार रीयूज करना है, बिकॉज वो हमें पावर्स में ही हमेशा आंसर देगा, हम यहाँ पे जितना भी मल्टीप्लाई तो फिर करेंगे। हमको दूसरा वेरिएबल लेना पड़ेगा फिर, राइट? एग्जैक्टली, और वो वेरिएबल हमें 9 टाइम्स रेप्लिकेट करना पड़ जाएगा, जो बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं होगा, मतलब 9 नए वेरिएबल्स हो जाएंगे। ऐसे करना पड़ेगा, राइट? ऐसे बोल रहे हो? यस। अभी देखते हैं, एक बार ट्राई करके देखते हैं। या तो फिर हम इसको वन लाइनर प्रिंट भी कर सकते हैं। हाँ, नहीं, एक मिनट। 7 8 9, ठीक है मेरे ख्याल से। हाँ, ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? क्योंकि हम लोग एक वेरिएबल को मल्टीपल टाइम रीयूज कर रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है क्या? इसको अगर मैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही चलेगा। प्रॉब्लम यहां से चालू होगी। तो मैं इसको NO1 बोलता हूं और यहाँ पे NO3 बोलता हूँ, तीसरा नंबर का है ना, इसको 3 बोलता हूँ। फिर इसको मैं बोलता हूँ NO4, बट इसमें क्या किससे मल्टीप्लाई करूँ मैं? बट इट्स लाइक सर हमें बार बार टेबल इनटू 1 2 3 4 ऐसा प्रॉपर सीक्वेंस में जाना होगा, नॉट इनटू 2 को हम बार बार कर सकते हैं। Yes, I agree. NO2 किया, NO3 किया, NO4 किया, NO5 किया, NO6, NO7। ये आप मेरे साथ में करना, सो दैट आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा। कि क्या हो रहा है, बिकॉज दिस मेथड इज ऑल्सो नॉट एफिशिएंट, यू हैव टू सी सम मोर अल्टरनेट। ओके, अब यहाँ पे मेरे को चेंज करना है, क्या लिखना है यहाँ पे? NO9 यहाँ पे NO8 NO8 7 and so on. NO6 इनको नहीं समझ में आ रहा है वो लोग मेरे को क्वेश्चन कर सकते हैं, डोंट वरी अबाउट इट, कि ये क्या कर रहे हो, है ना, क्यों कर रहे हो। NO1 क्या लिखा है? तो सर हमें मल्टीप्लायर्स भी चेंज करने पड़ेंगे, राइट फ्रॉम टेबल इनटू 2 के बाद जितने भी बार हमने टेबल इनटू 2 किया वो 3 4 5 ऐसा चलेगा, अभी देखते नहीं, बिकॉज सबके आउटपुट सेम होंगे, सारे आउटपुट 8 होने वाले हैं अब। 4 8, तो ये नेक्स्ट टाइम से 3 4 करना पड़ेगा। एक मिनट, इसको रन करता हूं मैं, लेट अदर्स आल्सो अंडरस्टैंड कि ये क्या हो रहा है, व्हाट इज द मिस्टेक वी आर डूइंग। ये क्या हो गया, हमने कुछ सबसे लॉस्ट वाला इज क्योंकि हमने मल्टीप्लाइड बाय लास्ट में 10। इनटू 10 किया है ना, इसलिए 40 आ रहा है। हाँ, इस लास्ट में 10 किया तो सही दिया, राइट? यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने चेंज नहीं किया। टेबल का वैल्यू कब चेंज हुआ? कभी भी नहीं चेंज हुआ। टेबल को असाइनमेंट लेफ्ट साइड में कब था टेबल? सिर्फ एक टाइम था, राइट?
तो 4 यस सर। यहाँ पे 4 था तो प्रिंट 4 किया, पहला वाला प्रिंट हुआ इधर। सेकंड टाइम क्या हुआ, नंबर 1 इक्वल टू सेकंड वेरिएबल लिया हमने। ये वेरिएबल डिक्लेरेशन का एक तरीका है फॉर दोज हु डोंट अंडरस्टैंड, कि एक लाइन पे हम लोग एक बार डेटा टाइप दे के उसके मल्टीपल वेरिएबल्स हम लोग सिंगल स्टेटमेंट में बना सकते हैं, सेपरेटेड बाय कॉमा एंड एंड विथ सेमीकोलन। ओके, ये भी एक कंसेप्ट है, क्रिएटिंग वेरिएबल्स इन सी। ओके, या इसको इन टेबल इंट सेपरेट लाइन पे नंबर 1 इंट नंबर 2 ऐसे भी कर सकते हो आप, नो प्रॉब्लम, जैसा चाहे वैसा कर सकते हो। तो अभी क्या हुआ, NO1 में टेबल में भी कितना वैल्यू था, 4, 4 मल्टीप्लाई 2 इज 8, तो 8 प्रिंट किया, यहाँ पे आया टेबल में कितना वैल्यू है, 4 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज अगेन 8। अगेन 8। वेरिएबल भले आपका नया हो लेकिन वैल्यू जो जाने वाली है वो सेम है पहले के जैसी, राइट। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसको अगर यहाँ पे कितना वैल्यू चाहिए अपने को, 12, राइट। Yep. तो इसको अभी क्या होगा देखो, 4, 8 और 12 आ रहा है क्या, देखो तो अपना लॉजिक सही है, आ रहा है, राइट। तो हम लोगों को ऐसा करेक्शन करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। तो प्रोग्राम लिखते समय डरना नहीं है, ओके, गलती होने दो। गलती से ही लॉजिकल थिंकिंग आती है, बट अगर आप गलती करने के लिए नहीं बैठोगे देन यू विल नॉट लर्न। सब फर्स्ट अटेम्प्ट में सही अगर होने वाला होगा देन यू माइट नॉट बी अ गुड स्टूडेंट इन दैट केस। हाँ, अब देखिए तुम्हारा प्रोग्राम देखो, मेरे को कितना चेंज करना पड़ रहा है, सही है प्रोग्राम। बट अभी भी अपना जो पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट था अपना ऑप्टिमाइजेशन क्या, कि मैं यहाँ पे 4 के बजाय अगर 5 डालू तो ये देगा क्या मेरे को, पूरा प्रोग्राम चेंज करना पड़ेगा, दैट्स नॉट। अभी फिर से देखते हैं एक बार, 4 का 5 किया मैंने, ओ ये ऑप्टिमाइज बन गया मतलब। We can also use 2 variables, right? Shamli, कैसे? There are multiple ways to do, but अभी जो प्रोग्राम किया अपन ने उसमें आप सिर्फ नंबर चेंज करो, वो टेबल आपको मिल जाएगा, वहां तक अपनी गाड़ी चल गई है, राइट। 29 डालता हूँ, 29 सबको याद रहेगा, इसके लिए 29 डालता हूँ। 29 का टेबल सब बराबर है क्या, देख लीजिए एक बार ध्यान से, जिसने भी याद किया है। आई एम सॉरी फॉर सेइंग दैट, बट ठीक है, लेट मी डू 20 वाला, इजी। हाँ, अब देखना, कोई भी टेबल वो दे रहा है अपने को, राइट, विदाउट थिंकिंग। इट कैन गिव इवन, ये देगा क्या, देखो जरा, दे रहा है ना, ये देगा क्या, दे रहा है ना। इसके आगे देगा क्या, अरे ये देगा क्या, ये 4 बाइट वाला कंपाइलर है। कुछ तो गड़बड़ हो गया है, तो लॉजिक तो इतने सारे प्रोग्राम के लिए चला, फिर अभी क्या हो गया, आउट ऑफ बाउंड्स इंटीजर के साइज के लिए। हाँ, इंटीजर का साइज उसने, So I have pasted my code. It's working. So I'm checking. you can check it on your I'm computer. checking. I'm checking. So Yes, sir. 3, हाँ, it's one and the same thing. Yeah. So 2 वेरिएबल में आपने काम कर लिया, टेबल इक्वल टू और टेबल का वैल्यू आपने, गुड। सो दैट इज ऑल्सो अनदर वे। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या सभी लोगों को, फैमिली का स्क्रीन दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा है, चैट में नहीं दिख रहा है ना आपको, ओके।
गिव मी सेकंड, मैं अभी शामली वाला कोड डाल रहा हूँ इसके अंदर। ओके, अच्छा, कंट्रोल सी, इसको मैं डालता हूँ। ये अभी एक कमेंट डाल रहा हूं मैं इधर। ये क्या किया मैंने, देखो आप, ये ब्लॉक कमेंट बोलते हैं इसको। आज बहुत सारे कंसेप्ट आप सीख रहे हो। व्हाट इज दिस? ये सारे कोड लाइन मैंने कमेंट कर दिया। अभी क्या प्रिंट होगा? कुछ भी नहीं प्रिंट किया उसने, सारे स्किप कर दिया उसने। अभी यहां पे शामली का कोड आएगा, राइट? अब देखते, पहला रन करते फिर बाद में चेक करते। ये तो दे दिया, अभी अपना पर्पस देखते हैं, सॉल्व कर रही क्या शामली? 4 दिया मैंने, हाँ हो रहा है, राइट? अभी लेट्स अंडरस्टैंड द लॉजिक। क्या किया हमने, मतलब शामली ने, दिस इज वे ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। टेबल इक्वल टू 4, तो टेबल का वैल्यू कहीं कभी भी 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दैट इज वन ऑफ द लॉजिक, राइट? तो n को इसने क्या किया, n को रीयूज किया, n का वैल्यू रीयूज किया। तो हमने जो 10 वेरिएबल बनाए थे, 10 वेरिएबल का जरूरत ही नहीं है। यू नीड टू हैव 10 वैल्यू टू बी स्टोर्ड इन अ सेम वेरिएबल, वही उसने किया। तो यहाँ पे ये जो हमने लिया है इधर, राइट, ये सारे वेरिएबल निकाल सकते हैं हम लोग। ये यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग किया हमने, ये डंप प्रोग्रामिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डंप प्रोग्रामिंग, राइट? जितना वेरिएबल दे रहा है उतना यूज कर रहा है, ले रहा है, डिक्लेयर कर रहा है, उसका जरूरत नहीं है। हमको क्या करना है, ये 2 वेरिएबल में भी किया, अभी इसको 1 वेरिएबल में करके दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है? ये समझ में आया क्या? ये जो लॉजिक लिखा है, ये समझ में आया क्या? सेम वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज हम रख सकते हैं। n इक्वल टू, टेबल में कितना वैल्यू है? 4 मल्टीप्लाई बाय 2, राइट? फिर n में कितना वैल्यू आया? n इक्वल टू, टेबल में कितना वैल्यू है? 4 मल्टीप्लाई बाय 3। समझ में आ रहा है क्या? n इक्वल टू, मैं अभी लाइन नंबर 21 पे आया एक्सप्लेन करते करते। 4 मल्टीप्लाई बाय, इधर 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ये समझ में आया? दिस इज हाउ दिस n विल बी रीयूज and the value of table will be also be reused, and you constructed this program without 9 variable or 10 variable, you can say. So Sir, send the code of single variable. that is what I'm trying to do now. Okay, don't be hurry. I know you know little programming, but don't be hurry. We will do that one by one. Okay, so fine. तो अभी हम लोग, इसमें किसी को डाउट है क्या? Does anybody has doubt? Sir. Is it clear to you? ये सारे प्रोग्राम आपको करने हैं, ओके? You have to give me a screenshot of these programs. Okay? Okay. So ये हो गया। ये मैंने लॉजिकल फ्लो समझाया आपको। एक ध्येय के प्रोग्राम से एक 9-10 वेरिएबल बना के 10 वेरिएबल से 2 वेरिएबल पे आ गई गाड़ी अपनी। अभी हम लोग 1 वेरिएबल का काम करते हैं। अब देखना अभी आप, ओके? अभी इसके पहला मैं अभी मेरा वाला जो प्रोग्राम था ना, कमेंट किया हुआ है क्या? अच्छा, ये अनोटेशन की वजह से जा नहीं रहा। ओके, सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू, हाँ, अभी मेरा जो प्रोग्राम था, मतलब शुरू का, राइट, इसको हम लोग क्या करते हैं, अभी यहां पे हमने क्या किया, ये n का वैल्यू इनिशियलाइज किया, सॉरी, विथ टेबल मल्टीप्लाई बाय 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट? अभी ये स्टेटमेंट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं,
राइट? देखना आपको मजा आएगा। So meeting is about to over in 5 minutes. I think our session will go 7. 5 minutes is enough for us. So after this, there won't be a session, but we will be having session tomorrow. Okay? हाँ, इसमें का ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट मैंने निकाल दिया है, नॉट यूजिंग एन एट ऑल। अरे सॉरी, कंट्रोल जे। सर एक्सक्यूज मी। हाँ सर हाँ, सर मैंने एक ही वेरिएबल यूज करके पूरा टेबल किया है। सिर्फ मैंने वो प्रिंटफ में नंबर मल्टीप्लाई बाय 2, नंबर मल्टीप्लाई बाय 3, 4 लाइक दिस ऐसा किया है, लेकिन वेरिएबल एक ही यूज किया है। हाँ सही है, फिर वही किया मैंने भी इधर। एंड इट रन्स। हाँ हाँ, वैसा ही किया ना मैंने भी इधर। हाँ हाँ राइट? तो ये मेरा प्रोग्राम चल गया। वापस एक बार टेस्ट करते, यहाँ पे 5 करके देखते कि चला कि नहीं चला। फैमिली समझ में आया क्या? फैमिली, एक वेरिएबल, राइट? Yes, sir. या नाउ ये 10 प्रिंटफ है अभी, राइट? इसको भी हम लोग ऑप्टिमाइज करते हैं क्विकली, राइट? सो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग? एक % यूज कर रहे हैं। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कंपाइलर का कि आप एक ही बार यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो, राइट? मैं अभी इसको 10 टाइम, मेरे को एक वैल्यू प्रिंट करना है, तो मैं 10 टाइम करता हूं इसको। ठीक है, ये 10 हो गया मेरा। अब इसको यहाँ पे कॉमा टेबल मल्टीप्लाई बाय 2 कॉमा, यही प्रिंट कर रहे हैं ना हम लोग सभी जगह पर, राइट? 3, 4, 5, 6। जिनको समझ में नहीं आया उन्होंने वीडियो देखे प्लीज, और डोंट शाई टू आस्क क्वेश्चन, बट प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ फायदा नहीं है उसका। ये हो गया। अभी ये कोड को मेरे को कमेंट करना है। क्या करूं मैं? सारे के सारे कोड कमेंट 10 बार टाइप नहीं करना है मेरे को, राइट? ये मैंने कमेंट किया। ओके, अभी क्या करते हैं? रन किया। ओ, ये क्या हुआ? प्रोग्राम तो आ गया बट हॉरिजॉन्टली आ गया, राइट? आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्टिकल लाना है तो इसको स्लैश n करके लेके आ जाओ। बट इसको प्रोग्राम को 6 से रिप्लेस करते तो देता है क्या आउटपुट? वो ये अगर दे रहा है तो अपना लॉजिक चल रहा है, ठीक है? अब ये रन का वर्क कैसे हुआ? ये काम कैसा करता है, मैं आपको जस्ट क्विकली ये करके देता हूं, समझाता हूं। हाँ, सो ये कैसा करता है? यहाँ पे ये सब फॉर्मेट स्पेसिफायर है। डबल कोट के अंदर जो है ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, राइट? हाँ, अब इसमें का ये जो पहला % है उसमें कौन सा वैल्यू आएगा? ये वाला वैल्यू आएगा, पहला वेरिएबल का। दूसरा वेरिएबल, ये कंप्लीट एक्सप्रेशन रिजॉल्व होता है इधर, और फिर वो वैल्यू कैलकुलेट करके सेकंड में जाता है। फिर तीसरा वेरिएबल आएगा
इसको वो सॉल्व करेगा, एक्सपांड करेगा और फिर वो जाएगा थर्ड में, फिर वो जाएगा फोर्थ में, फिर वो जाएगा सिक्स। So what I done here, what I was about to explain you guys, that the value of table will go to first percentile. Value of this table will go to first percentile. Value of second table, second statement. This statement means this part between two commas, right? This will go to second percentile. Value of this will go to next percentile, whatever is the next, right? Third. तो यहाँ पे ये कितना था पहले, और ये इवेल्युएशन होता है लेफ्ट टू राइट, ये बहुत ख्याल में रखना आप, राइट? ये इवेल्युएशन होता है लेफ्ट टू राइट, बट असाइनमेंट होता है लेफ्ट का लेफ्ट मोस्ट परसेंटेज से। समझ में आया? तो टेबल 4 का कहां जाएगा? टेबल 4 का एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा। यहां पे कितना था? 6 था, राइट? तो 6 का बनेगा, 6 का वैल्यू, यहां पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है, प्लस मल्टीप्लिकेशन माइनस वगैरह कुछ नहीं, ये जाएगा डायरेक्टली परसेंटेज में स्टोर 6। अब क्या करेगा? यहां पे आएगा वो, ऐसे ही काम करता है कंपाइलर। ओके, व्हाट आई एम टेलिंग यू, इन दिस वे ओनली इट विल वर्क, देन इट विल कम टू सेकंड स्टेटमेंट टू बी रिजॉल्व, दैट इज टेबल मल्टीप्लाई बाय 2। टेबल में वैल्यू कितना है? टेबल में वैल्यू कितना है? हेलो, आई एम नॉट ऑन म्यूट। या 6, थैंक्स सलीम। तो टेबल में हमेशा वैल्यू 6 है। टेबल का वैल्यू लाइफ में कभी चेंज नहीं किया हमने। कहीं पे चेंज किया है क्या? कहीं पे भी चेंज नहीं किया है, राइट? इट इज कांस्टेंट। वैल्यू क्या चेंज हुआ? वैल्यू क्या चेंज हुआ? उसको जो मल्टीपल करने वाला वैल्यू है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पे नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 इज नथिंग बट नंबर, राइट? दैट्स व्हाई आई नॉट रिटन मल्टीपल 1, but next time number table multiply by 2 is 12, then 18 will store here and print here at this spot, right? Then print 4 like 64, 6 multiplied by 4 24, right? Here this one, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये जाएगा 5 पे, यहाँ पे जाएगा 6 पे, यहाँ पे ये किस पे जाएगा? ये किस पे जाएगा? अभी बोलो। नेक्स्ट वाला परसेंटेज उल्टा किया मैंने अभी, ये यहाँ पे जाएगा। मैं अभी दोनों तरीके से करता हूं। ये यहाँ पे गया तो ये कहाँ जाएगा? अभी इधर आएगा। ये वैल्यू रिजॉल्व, एक पहला ये होता है, राइट? पहला ये रिजॉल्व होगा, ये जाएगा लास्ट वाले नेक्स्ट पे। समझ में आ रहा है क्या आपको? दिस इज हाउ इट प्रिंट्स। कुछ क्वेश्चन है तो बताइए, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन। हाँ, तो अभी इसको रन करते हैं फिर से एक बार, एंड इट्स प्रिंटेड। हाउ मेनी वेरिएबल्स वी यूज? How many variables we use? Only one. ऐड करना पड़ेगा। अगर आपको स्लैश एन ऐड करना है तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं करना है मत करो, यहाँ पे मैंने स्पेस दिया है। इट्स अप टू यू, राइट? और कितने नंबर ऑफ लाइन का प्रोग्राम होगा ये? हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइन्स प्रोग्राम हैज बीन दिस, कंपेयरिंग द फर्स्ट वन, नेक्स्ट वन एंड Shamli's one, right? This one is Shamli's with 2 variables, right?
तो ये हो गया ऑप्टिमाइजेशन। ये ऑप्टिमाइजेशन का तरीका आपको कितने ट्राई के बाद में आया? 4th ट्राई, राइट? सो मैं चाहता हूं आप ये प्रोग्राम करो एंड गिव मी टेबल फ्रॉम 2 to 10 इन वन प्रोग्राम। ओके, मैंने लूप नहीं सिखाया, मैंने इफ नहीं सिखाया, तो वो जो नहीं सिखाया वो नहीं करना है, जो सिखाया है उतना ही यूज करना है। ठीक है? सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आई एम देयर। इफ यू डोंट हैव, वी विल रैप for confirmation. So I'll take that as an confirmation to wrap this program for today. They joined just now. I already explained this. You go and watch this video once it is available. Okay, and those who didn't understand, okay, I request you all to watch today's session. Okay, and solve that assignment. Okay, fine. Thank you. Bye bye.